And now when I am speaking, no one will be writing in the chat. Let me complete a particular thing and then you guys can write in the chat, because there are offline students also and I need to show your answers to offline students as well. So do wait for me to complete a particular question, and when I ask students to reply, you can point out in the chat section. So it has to be a systematic and smooth experience for everyone. So do make sure that when you are given the option to write, you are answering it in the chat section. So now a question to every one of you. Has everyone completed the target scheduled for this week? So you were supposed to complete economic concepts and demand supply first chapter. So have you completed that? जो सेकेंड चैप्टर अगर आप लोगों के पास 2019 का मटेरियल है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स हैव 2019 मटेरियल, सो 2019 मटेरियल में जो सेकेंड चैप्टर है वो मैंने लास्ट ओरिएंटेशन में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि दैट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्स. तो बेसिकली योर थर्ड चैप्टर इज नाउ योर सेकेंड चैप्टर. तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बाद सेकेंड चैप्टर अब क्या है हमारा, डिमांड सप्लाई. So everyone has gone through the videos related to both these chapters. So basically, if I ask you the concepts related to opportunity cost, you are clear with that? If I ask you the questions related to say different type of markets, कि planned economy क्या होती है, command economy क्या होती है, you are clear with that? Then demand equation, supply, equilibrium questions, we will be discussing about all this in today's session. Okay, so I think you have missed the lecture then, because in content lecture it is not there. In if you see the past paper lecture, तो जो target होता है ना, that's basically your content plus past papers lectures both. So from next time you need to wrap up content plus past papers lectures both before attending the live session. Because मेरा क्या target रहेगा, आप content देख कर आओगे, आप past papers lectures देख के आओगे. I will be giving you smooth targets which can be easily manageable. हम क्लास में जब मैं आपको बोल दूंगी कि मेरी साइड से, लेट्स सपोज मैं आज आपको बोलती हूँ कि मेरी साइड से चैप्टर 1 और 2 कंप्लीटेड है, इसका क्या मतलब है कि अब आप जो मर्जी पास्ट पेपर उठा लो, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल क्वेश्चन इन एनी ऑफ द पास्ट पेपर विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड, because either that has been discussed in the lectures or it will be discussed in the live session. So there will not be any single question that you need to do on your own. तो समरी लिस्ट जैसे आपको हमने ओरिएंटेशन, सबने ओरिएंटेशन देखा है, तो आप देख आपने तो ओरिएंटेशन देखना चाहिए था ना. पुरानी नहीं है, नई ओरिएंटेशन है, लेटेस्ट ओरिएंटेशन है जो लास्ट वीक हुई है. लास्ट वीक देयर वाज अ क्लास शेड्यूल बट सिंस आई वाज नॉट वेल तो वी डिड नॉट हैड अ क्लास. नहीं वो ओरिएंटेशन नहीं. आप टीम से लेटेस्ट ओरिएंटेशन मांगो, अगर आपके पास ओरिएंटेशन नहीं है तो सबको फ्लोट हुआ है लेटेस्ट ओरिएंटेशन, तो लेटेस्ट ओरिएंटेशन वॉच करना है आपने. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइज, आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू हैज़ कम्प्लीटेड द टारगेट्स, बिकॉज अगर आप टारगेट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो लाइव क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है. Each one of you who is attending live right now, I want active participation from everyone. So let's start with today's session with the first question of the day. So is the screen visible to everyone? So let's start with the first question. देखो अभी IFOI का पैटर्न सबको क्लियर है, ओरिएंटेशन सबने देख लिया है. गाइज ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड लेट, how to manage the videos, how to proceed with the videos, this has been told in detail in last orientation. तो मैंने आपको ओरिएंटेशन में ये चीज़ बोली थी कि सिंस वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्निकल थिंग्स टू डिस्कस इन अ लाइव सेशन, प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन में कवर कर रहे हो. Each and everything with respect to how to proceed with videos has been covered in latest CB2 orientation as per 2025 course. So अगर आपके पास orientation का access नहीं है because that has not been uploaded on the portal yet, so you can ask the team to share the YT link with you. Team will share that. Do watch that before asking any question. Now first question of the day, relevant for both II as well as IFOA students. Anyone who is giving II in अभी आप II दे रहे हो? Okay.
So first question relevant for both the students. In a free market economy, economic decisions are taken by central authority. Economic decisions are taken by individual households and firms with no government intervention. Economic decisions are taken partly by government and partly through market. Economy is associated with socialist or communist system. ऑप्शन बी परफेक्ट. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? फ्री वर्ड जहां पर भी आपको दिखेगा, फ्री का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी. अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी तो मतलब सारे के सारे डिसीजंस कैसे निकलेंगे? जैसे डिमांड सप्लाई है, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें से इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? बताओ. अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा? नॉर्मल डिमांड सप्लाई. कोई भी हम रूल नहीं लगाएंगे कि अच्छा मिनिमम प्राइस ये होना चाहिए या फिर मैक्सिमम प्राइस ये होना चाहिए. जब ऐसा कुछ रूल लग जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम का, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सी इकोनॉमी हो रही है? जो गवर्नमेंट जिसमें इंटरवीन करती है उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर जाएगी, दैट विल बिकम योर सेंट्रल. सेंट्रल वर्ड, सेंट्रल इज द की वर्ड फॉर गवर्नमेंट. Free is the keyword for without government intervention. So answer is B. So plus 1.5 for everyone who answered it correctly. So I can see almost all of online students have told B. So guys, you can see this chat section I have opened for you guys only, so that you can also see ki what online students are answering. Now next question for everyone. Which of the following statements is false? Change in technology does not affect supply. So does change in technology affect supply? How does change in technology affect supply? अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज. Demand for goods is affected by income of population. Is it true or false? Yes, demand for goods is affected by income of population. Demand for a particular good is affected by price of its substitutes. Supply of goods is affected by government policy. So what is false then? Change in technology affects supply. So option A is false. Clear है? So II students might be thinking that this will be the level of exam and exam will be very easy because we know the options to 100% MCQs is there, but this will not be the case because इतने easy options नहीं आएंगे. अभी सिर्फ starting है. डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर्स बहुत ईजी हैं. आपका रियल CB2 एज आई टोल्ड इन ओरिएंटेशन ऑल्सो कि इट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ईच एंड एवरी ऑप्शन विल बिकम डिफिकल्ट. तो यू नीड 100% कंसंट्रेशन, देन ओनली यू कैन मेक श्योर दैट यू आर एबल टू क्लियर एग्जाम. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question, these two questions are from May 2024 exam. So next question for everyone. Which of the following item does not affect the cost of production for mobile phones? I want a reason for same.
Okay, so question says which of the following item does not affect the cost of production for mobile phones? Cost of rare earth metals used to make microchips for the phones. Does it affect mobile phones cost? Yes, because obviously cost of raw material is there, so that will affect your cost of production. Cost of R&D undertaken by the company to develop new features, does it affect the cost? Yes. Geopolitical conflicts and competition between firms. So competition between firms क्या affect करेगा? How does competition between firms affect your cost? सो येस, बिकॉज कंपटीशन का आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि आप कंपटीशन को सरवाइव कर पा रहे हो. अदरवाइज अगर आपका प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा तो आप कंपटीशन से बहुत दूर चले जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ लाइन विद द मार्केट. सो येस, कंपटीशन अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट्स द जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट डू नॉट इम्पैक्ट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Yes, they can impact, but अभी हम मतलब indirectly हमारे पास कोई और option नहीं है, तो that's why we have chosen geopolitical. So everyone's answer is correct. Yes, it's C. Third question. A company has suffered a severe hit to its brand name. What do you think will happen to its demand curve? Company has suffered a severe hit to its brand name. What do you think will happen to its demand curve? सबसे पहले मुझे ये बताओ, लेफ्टवर्ड मूव होगा कर्व या राइटवर्ड मूव होगा? राइटवर्ड. राइट कब मूव होता है कर्व? डिमांड. प्रॉफिट कहाँ से आ गया मम्मी? डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होएगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा? ये आपका डिमांड कर्व. दिस इज योर क्वांटिटी, दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर डिमांड कर्व. हमने ये पढ़ा है, इफ देर इज एनी चेंज इन प्राइस इट जस्ट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इफ यू आर अज्यूमिंग प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट बट एनीथिंग एल्स टू बी चेंज्ड, तो ऑटोमेटिकली या तो डिमांड कर्व यहाँ मूव करेगा या फिर डिमांड कर्व यहाँ मूव करेगा. अब जब डिमांड कर्व राइटवर्ड मूव कर रहा है तो यू कैन सी इंक्रीज इन क्वांटिटी, एंड जब डिमांड का लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है तो यू कैन सी डिक्रीज इन क्वांटिटी. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड कर्व? प्रेफरेंसेस इंक्रीज हो रही है, बेटर हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, सब्सटीट्यूट गुड के प्राइसेस में चेंज आ रहा है. दैट वी हैव डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे बेसिकली कि कंपनी हैज सफर्ड अ सिवियर हिट टू इट्स ब्रांड नेम. तो हिट हुआ है ब्रांड नेम, मतलब सिवियर हिट टू इट्स ब्रांड नेम. इसकी इंग्लिश क्या है कि डज दैट मीन कि ब्रांड नेम हैज इंप्रूव्ड और डज दैट मीन दैट ब्रांड नेम हैज सफर्ड अ डिक्लाइन? यस, डिक्लाइन. तो अगर ब्रांड नेम डिक्लाइन हुआ है तो व्हाट विल हैपन टू डिमांड कर्व? लेफ्टवर्ड शिफ्ट. तो मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो ऑप्शन या तो बी होगा या फिर सी होगा. तो अब बताओ, अगर कोई चीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, अभी कैन इट मेक इट मोर इलास्टिक और इन इलास्टिक? इलास्टिक कब होगा? जब उसके सब्सटीट्यूट्स होंगे अवेलेबल. और इन इलास्टिक कब होगा कि भैया सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, मेरा ब्रांड नेम खत्म हो चुका है, फिर भी लोग मुझे ही कंज्यूम कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है. ब्रांड नेम खत्म हुआ तो लोगों ने इसकी कंजम्पशन कम कर दी, तो ऑब्वियसली इसका मतलब लोग सब्सटीट्यूट्स में मूव कर रहे हैं. तो दिस हैज मेड द गुड मोर इलास्टिक. तो ऑप्शन इज बी. तो यू शुड बी नोइंग द रीजन, बिकॉज अभी क्या है, अभी आप लोग, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप लोग ये चीज़ें रिवाइज करोगे ना, आप अपने नोट्स में ये रीजंस पॉइंट आउट करते रहो, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिविजन इट्स क्लियर टू यू कि हमने इलास्टिक क्यों बोला था. So Ansh, you answered C. So C is wrong. Rest everyone else answered B. वो
देखा अभी वीडियो में कवर है। वी विल बी डूइंग, देखो अगर मैं अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी ना तो पूरी क्लास वो हो जाएगी, इसलिए मेरा ये लॉजिक है कि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास से पढ़ के आने हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो अभी इलास्टिसिटी वाला आई थिंक आपने वीडियोस, अभी वो चैप्टर एक तरीके से चैप्टर 3 के अंदर है, डिमांड सप्लाई वाला इलास्टिसिटी, तो अगर नई भी वीडियोस कंप्लीट करी तो इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम से आपको वीडियो का ना मैं एक काम करूँगी, मैं वीडियो के नंबर भी आपको बता दूंगी ताकि आपको क्लियर हो कि आपको कौन सी वीडियोज़ देख कर आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम इफेक्ट ऑन द चेंज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड? Take your time, everyone, and then answer. Okay, let's discuss. When the price of tomatoes increase, people started consuming more onions, which are cheaper, and less of tomatoes. ये कौन सा इम्पैक्ट है? जब हमें पता है जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और लोग उसके सब्सटीट्यूट पे मूव कर रहे हैं तो वो सब्सटीट्यूशन इम्पैक्ट हो गया, तो ये तो हो गया मेरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ लैपटॉप्स इंक्रीज द डिमांड फॉर लैपटॉप्स फॉल, ये कौन सा इफेक्ट है? When price of laptops increase, the demand for laptops fall. चलो आगे और चलते हैं। When the price of wooden furniture increases, people started buying more steel furniture, which was cheaper. So again, it's a substitute effect. Now, last option is both A and C. So can both A and C be income effect? Because if I show you the online students' response, you will be shocked to see everyone is answering D. So Soumya answered D, Sanika says D, Rishabh says D, Bhavya says D, Abhishek says D, Neve says D, and we have Nivita says D, but Ansh has answered B, Vanshika has answered B, Pragya has answered B. So guys, don't be in a hurry to submit your answer. All those who answered D, they are wrong. Answer is clearly B. They are not asking you कि substitution impact क्या है। जब भी हमारी डिमांड में चेंज आता है हमेशा ध्यान रखना दो इम्पैक्ट होते हैं, वन इज सब्सटीट्यूशन इम्पैक्ट एंड अदर इज इनकम इफेक्ट। सपोजिंगली मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज करके हमने कहा कि मैं इसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम करूँगी। क्यों कम इंक्रीज करूँगी? क्योंकि प्राइस इंक्रीज करने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट, जो कि आपका केस बी में हो रहा है। और सेम टाइम प्राइस इंक्रीज हुआ, मैंने बोला मैं इसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम करूंगी, क्यों? क्योंकि मैं इसके सब्सटीट्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही हूँ। तो जहाँ भी सब्सटीट्यूट आ जाएगा दैट इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ऑल दोज हु आंसर डी फॉर दिस क्वेश्चन दे आर रॉन्ग, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so these questions were from II November 2023 exam. I will keep on telling the papers also so that in case you want to note it down you can. Now a long question for 4 marks. Since it's a 4 marks question, that does not mean कि II students don't have to do this question. You need to do this question because you can get the same question in the form of MCQ format as well. So everyone start attempting question 28, 4 marks, 5 minutes time, start doing.
2 more minutes for this question, everyone. You can make a diagram as well if you want. You can make it in rough and then answer. Don't be in a hurry to submit. No train is going on. It's better if you submit it after going through the entire question. Done? Okay, so let's start discussing, everyone. Answers in the chat section. Okay, so question was, consider a market for tabletop calendars and explain the effect of each of the following scenarios on the supply curve for tabletop calendars. Fall in the cost of glaze paper. So what is glaze paper for tabletop calendars? Input. Okay. So if there is a fall in the cost of inputs, what will happen to the supply curve for tabletop calendars? Yes. So you have to explain. IFOA students, you need to explain that cost of glaze paper falling is basically fall in the cost of inputs. So your supply curve for tabletop calendars will shift to the right. So Vanshika says fall in the cost of glaze paper will reduce the cost of production. This will lead to increase in supply, rightward shift in supply curve. Perfect. This is your perfect explanation. All IFOA students. Yes, you need to give. It's a 1 mark question. You need to give explanation. Ansh says supply curve will shift to the right as cost of production has fallen. Ansh, a better explanation is required. प्रज्ञा राइटवर्ड शिफ्ट, सौम्या इंक्रीज, आप लोग सब सही बोल रहे हो, बट यू नीड टू एक्सप्लेन. डोंट फाइंड आउट शॉर्टकट्स, यू नीड टू एक्सप्लेन. So Niveta says upward movement. There is no upward movement, and please point out your parts as well. You need to point out कि whether supply curve has shift to the right or left. नेक्स्ट देखो, प्राइस ऑफ वॉल हंग कैलेंडर्स इंक्रीज. वॉल हंग कैलेंडर्स और टेबल टॉप कैलेंडर्स क्या रिलेशन है? ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स का सप्लाई में क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या 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 किसका प्राइस इंक्रीज हुआ? वॉल हंग कैलेंडर्स का प्राइस इंक्रीज होने से टेबल टॉप का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा. ओके, सो 1 वोट फॉर नो इम्पैक्ट. क्यों? किसकी सप्लाई बढ़ेगी? टेबल टॉप की सप्लाई बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ेगी? तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो टेबल टॉप की सप्लाई क्यों बढ़ेगी? वो तो डिमांड, अभी तो हमने सीखा है ना कि डिमांड बढ़ेगी ना. अगर उस गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी.
सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलो, दो लोग तो हो गए नो इम्पैक्ट वाले, तुम क्या कह रहे हो? बढ़ तो जाएगी, लेकिन क्यों बढ़ रही है ये बताओ मुझे रीजन। डिमांड पे तो इम्पैक्ट कंसिडर ही नहीं करना, तुम डिमांड छोड़ दो। जब आप सप्लाई देख रहे हो ना, देखो सप्लाई के और डिमांड के फैक्टर्स हमें अलग अलग पड़े हैं, तो सिर्फ सप्लाई के फैक्टर्स पे ध्यान दो। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सप्लाई लिखा है तो तुम लोग सप्लाई जज कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखा हो तो तुम तो डिमांड को ही ला दोगे इससे। अगर मान लीजिए एक कंपनी टेबल टॉप बना रहा है, दूसरी कंपनी वॉलहम, दोनों के पास अगर 50% सप्लाई जा रही है रॉ मटेरियल, एक कंपनी अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो दूसरे कंपनी की सप्लाई से सेम कुछ नहीं। टेबल टॉप कैलेंडर और वॉल हंग कैलेंडर तुम लोगों ने अभी आंसर किया कि आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्या सब्स्टिट्यूट्स इन सप्लाई? मेरे पास ऑप्शन है कि सपोज करो मैं टेबल टॉप कैलेंडर्स भी बना सकती हूँ, मैं वॉल हंग कैलेंडर्स भी बना सकती हूँ। मुझे वॉल हंग कैलेंडर्स में ज़्यादा बेटर प्रॉफिट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं कहाँ पे, मैं क्या कहूँगी, मेरे सारे रिसोर्सेज वॉल हंग कैलेंडर्स बनाने में लग जाए। अगर मेरे सारे रिसोर्सेज वॉल हंग कैलेंडर्स में लग जाएंगे, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेबल टॉप कैलेंडर्स विल इंक्रीज। So if opportunity cost of producing tabletop calendars is increasing, that means there will be a drop in supply. वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखी ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने, इससे बेटर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। वंशिका, द प्राइस ऑफ हंग कैलेंडर्स इंक्रीज सो फर्म विल शिफ्ट देयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जाएगा? एक चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एज अ सप्लायर तो आपके लिए अच्छी चीज है यार कि ठीक है वो बढ़ा दे, वो उसको बना देते हैं, इसको कम कर देते हैं, इसको कम करेंगे इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सो परफेक्ट वंशिका। पुष्पेंद्र सेज प्रोडक्शन यूनिट विल कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन ऑफ टेबल टॉप कैलेंडर। दमन सेज प्राइस ऑफ वॉल हंग कैलेंडर्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ टेबल टॉप्स, so supply of wall hungs will increase and shift rightward. Can we say that there is a positive relation between substitute goods and supply? Yes, there is a positive relation. So we can write this too. हाँ, मतलब आप देखो, इतना आपको रिलेशंस याद रखने की भी ज़रूरत क्यों है? वैसे कंफ्यूज हो गए ना आप। एक लेमैन टर्म्स में सोचो कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास हमेशा ना, आपको हमेशा पूरी इकोनॉमिक्स पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हम दोनों बनाएंगे, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मेरे पास मान लो 2 वर्कर्स है, अब वो 2 वर्कर्स अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं वॉल हंग बनाने में, तो मैं वॉल हंग बनवाऊंगी, मैं टेबल टॉप रुकवा दूंगी। मैं टेबल टॉप रुकवाऊंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। बस, आप कुछ भी याद मत रखो, क्योंकि जितनी चीज़ें आप याद रखोगे ना, इकोनॉमिक्स आपके लिए उतनी मुश्किल बन रही है। जितना आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ना ऑन द स्पॉट, उतना आपके लिए ईजी होएगा, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स बहुत मुश्किल है। Pragya, if price of wall hung calendars increase, then supply of wall hung calendars increases, and as both are substitute, supply of tabletop decreases and leftward. So perfect answer by all online students. Offline students very bad. None of you answered it correctly. Next part. A new process of recycling is developed in country C, due to which the cost of cardboard decreases, because waste paper from developed countries are used to make cardboard. So cost of production, ये simple है, cost of production is declining, supply will increase. Government makes it more difficult to cut trees needed for producing glaze paper. Again, legislative restrictions are there, so supply will fall. So all online students, for the first part we said that fall in the cost of glaze paper, supply will increase. Price of wall hung calendars increase की वजह से supply of table top will decrease. New process of recycling की वजह से supply will increase. Government making it difficult, supply will decrease. Now let's move to next question.
So this was from II November 2023 exams. Okay, so easy one. Which of the following are complementary? सो टी एंड कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव और बी नहीं हो सकता. बचा क्या? कार इंश्योरेंस एंड कार, कीबोर्ड एंड मॉनिटर. बिना कार के आप कार इंश्योरेंस नहीं लेते हो, लेकिन मॉनिटर हम लोग अलग से भी अटैच कर लेते हैं लैपटॉप के साथ, सेम लैपटॉप के साथ अलग से हम कीबोर्ड भी अटैच कर लेते हैं. तो मॉनिटर एंड कीबोर्ड आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. कार इंश्योरेंस एंड कार आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो आंसर इज ए. Second part or second question. Subsidy for car production will lead to what? So yes, so subsidy किसको impact करती है? सप्लाई को. क्यों? सब्सिडी की वजह से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी फॉल कर जाती है. तो इम्पैक्ट हैज टू बी ऑन सप्लाई कर्व. एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन सप्लाई कर्व? rightward shift. So yes, all online students answered C. So this was easy, so that's why everyone answered it correctly. अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे से easy questions हो पा रहे हैं, तो वो आपको ये सोचना है कि वो सबसे हो पा रहे हैं. और देखो IFOI में सबसे ज़्यादा ये देखो, II का तो फ्लैट मार्किंग है, 50 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए. II का सिंपल रूल है. IFOI में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू किया है. CB2 में तो आपके पास एक बोनस है कि आपके पास 45 मार्क्स के MCQs है, रेस्ट सब्जेक्टिव है. जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, वहाँ पे एग्जामिनर 1 और एग्जामिनर 2 की मार्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. और हायर सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट इस एक एक मार्क की वजह से फेल हो जाते हैं. एक एग्जामिनर ने दिए लेट्स सपोज 5 में से 2 मार्क्स, दूसरे ने दिए 5 में से 4 मार्क्स, लेकिन एवरेज आउट करके मान लो आपका 3 आ रहा है, और 3 जिसकी वजह से आपका पासिंग मार्क नहीं मतलब मीट हो पा रहा, तो आप फेल हो जाओगे. आपको लगेगा यार एग्जामिनर 2 ने 4 दे दिया, अगर मेरे को पहले वाले ने भी 4 दिए होते तो मैं पास हो जाता. आपके बिना मतलब के 6 मंथ्स वेस्ट हो जाते. तो जो आप कीवर्ड्स यूज करोगे ना, जो आप टेक्निकलिटीज अपने आंसर में यूज करोगे, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. MCQ में IFOI के हिसाब से आपको कोई भी आंसरिंग नहीं देनी. मतलब MCQ वाले में यू नीड टू जस्ट गिव ABC ऑप्शन, दैट्स इट. बट सिर्फ हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से 3.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. और ये सेम चीज़ आगे आने वाले हायर एग्जाम्स में आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एरिया है कि एग्जामिनर 1 और एग्जामिनर 2 की मार्किंग में डिफरेंस आ रहा है IFOI में. इंडिया वाले ये रिवील नहीं करते हैं. इंडिया में सिंपल रूल है, बस हमें 50 नंबर चाहिए, आपको सिंपल मार्क्स आ जाते हैं आपके, दैट्स इट. वहाँ पे मार्किंग 1 मार्किंग 2 क्या हो रही है कुछ नहीं पता. नेक्स्ट क्वेश्चन. So question 28, everyone start attempting. A good question for 10 marks.
2 more minutes and post that we will start discussing. So let's start discussing. The demand and supply conditions in a market of clubs are given by the following equations. QD is given to you as 3600 minus 5P, QS is 7P और प्राइस यहाँ पे मेन आपको इस पे कैच है, प्राइस इज गिवन इन INR पर kg, क्वांटिटी इज ऑल्सो इन kg. Government is thinking about implementing a tax on the output of clubs to have some money for health insurance of club farmers. टैक्स किसको इम्पैक्ट करेगा, सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व? सप्लाई. ओके, सो व्हाट वुड बी द न्यू इक्वेशन ऑफ सप्लाई कर्व इफ अ टैक्स ऑफ 5000 पर केजी लगा होता, तो आपकी इक्वेशन क्या होती? पहले मुझे ये बताओ. 7 ब्रैकेट में p माइनस 5000, ये इक्वेशन हो जाती है. लेकिन अभी क्या है, 5000 पर क्विंटल, दैट मीन्स 50 पर केजी. तो इसका मतलब मेरी सप्लाई की इक्वेशन क्या है, 7p माइनस 50. देयर विल ओनली बी चेंज इन सप्लाई कर्व एंड नो चेंज इन डिमांड कर्व. सो अभिषेक एंड प्रज्ञा, यू हैव आंसर्ड इट रॉन्ग. Abhishek, you have answered that it will impact your QD also. So 3600 minus 5p plus 5000, this is wrong equation. Sanika has written it correctly, 7 into p minus 50. This is your new supply curve. अब आपके लिए बहुत easy हो गया है. New supply curve है मेरे पास, demand curve remaining unchanged. Can I find out the price and quantity? Find out. बिकॉज यू आर सपोज टू एक्सप्लेन कि कितने परसेंटेज से डिक्लाइन हुआ है, तो आपके पास पहले वाली क्वांटिटी और प्राइस भी होना चाहिए और नई क्वांटिटी और प्राइस भी होना चाहिए, और फिर परसेंटेज निकालकर हम लोग कंपेयर करेंगे. सो पहले वाला प्राइस आना चाहिए 300 और क्वांटिटी आनी चाहिए 2100. So earlier quantity was 2100, now quantity is 1954. So percentage कितना decline हुआ है? Yes,
So how will you calculate 7%? Yes, so 2100 minus 1954 divided by 2100 multiplied by 100. So difference divided by पहले वाला amount multiplied by 100 gives you the percentage change, which in this case is 7%. नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. सो इन दिस केस व्हाट वुड बी द टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. कैसे निकालेंगे टैक्स. टैक्स लग कितना रहा है 50 पर केजी. किस क्वांटिटी पे लगेगा 1954. दिस वुड बी योर टैक्स रेवेन्यू. Next, what would be the new equilibrium price after tax? This you know. What is the share of producer and consumer? अब ये बताओ. What's the new equilibrium price? 329. ठीक है. अब वो बोल रहा है इसमें से कंज्यूमर का पोर्शन कितना है और प्रोड्यूसर का पोर्शन कितना है. ये यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो आप. टैक्स लगा है 50 का, लेकिन प्राइस देखा जाए तो पूरे 50 से प्रोड्यूसर के लिए कम नहीं हुआ. प्राइस पहले कितना था हमारा 300, अब हमारा प्राइस हो गया है 329. मतलब एज अ बायर मैं 29 एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ और एज अ प्रोड्यूसर मुझे जो रिसीव करना था मैं उसमें से उतना पोर्शन नहीं रिसीव कर पा रही हूँ. तो कितना बर्डन प्रोड्यूसर ने शेयर किया टैक्स का और कितना बर्डन कंज्यूमर ने शेयर किया. देखो चेंज कितना आया आपका 29 का. तो कंज्यूमर ने इसका मतलब कितना पे किया 29 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 58% ऑफ टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे कर रहा है. और प्रोड्यूसर ने क्या किया 21 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा अब आपका 42%. क्लियर. So this is important from exam perspective as well. So guys you need to explain in percentage terms. तो अभी आपने अच्युतन जैसे लिखा है 21 is correct, but percentage terms में explain करो. ड्रॉ अ डायग्राम. ये अब आपका टेस्ट नहीं होएगा. ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई का. बट ये डायग्राम आपके पास ऑलरेडी आपको बनाना आता है कि कैसे हम बनाते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व पे इम्पैक्ट. तो गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. यू कैन नोट इट डाउन. लास्ट पार्ट में जो 329 का तो न्यू वाले प्राइस से हमें वो बताना है कि टैक्स में कितना बर्डन शेयर करेंगे. न्यू मंथली प्राइस नहीं, मतलब पुराना हमारा प्राइस आ रहा था 300, अब प्राइस इंक्रीज हो गया 329. तो आप तो एक तरीके से 329 पे कर रहे हो एज अ बायर, तो आप 329 पे कर रहे हो. तो मतलब 29 का 50 में से 29 वाला पोर्शन आपके पास आ गया और रेस्ट 21 वाला पोर्शन प्रोड्यूसर के पास चला गया.
Start attempting question 1. So which changes are most relevant to macro? Real GDP, आपको पता है दिस इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. वेज रेट पेड टू वर्कर्स एट अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं तो इट्स अ माइक्रो. प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स माइक्रो. क्वांटिटी ऑफ शिप्स प्रोड्यूस्ड माइक्रो. सो मोस्ट रेलिवेंट इज जीडीपी. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. अगर अभी गिफन गुड इग्नोर कर सकते हैं हम, बिकॉज हमने गिफन गुड आगे भी काफ़ी डिटेल में करना है, तो जस्ट इग्नोर सेकेंड. यू कैन मूव टू थर्ड. So good X is a normal good assuming no other changes to the factors that impact the supply and demand. Which statement is true if there is a fall in income? कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? इनकम में फॉल आया है, किस पे इम्पैक्ट आएगा? डिमांड पे. लेकिन आपको इम्पैक्ट किस पे बताना है? प्राइस और क्वांटिटी पे. इसका मतलब मुझे इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाकर चेक करना पड़ेगा इम्पैक्ट. सो ड्रॉ द डायग्राम एंड सी योर इम्पैक्ट. दिस इज़ योर डिमांड कर्व, दिस इज़ योर सप्लाई कर्व. ये था मेरा पी, ये मेरी क्वांटिटी. इफ़ देर इज़ क्या बोला है उन्होंने, सॉरी, इफ़ देर इज़ अ फॉल इन इनकम, तो व्हाट विल हैपन? सो इनकम का फॉल किसको इम्पैक्ट करेगा? डिमांड कर्व को. कैसे इम्पैक्ट करेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट. So what is my new equilibrium price? This will be my new equilibrium price. This will be my new quantity. अब options क्या है? Price will rise. Is it true? Price is falling. You can see. Quantity supplied will rise. No. Quantity supplied will remain unchanged. No. Price of X will fall. True. So answer is last part. So this is how you need to do these type of questions. Next question. Start doing question 29.
डन. State for each of the following cases concerning good X. बहुत ध्यान से समझना. It's an application style question. The substitution effect, income effect and overall effect on the demand for good X of a fall in the price of good X. So देखो, state for each of the following cases concerning good X, substitution effect, income effect and overall effect on the demand for good X of a fall in the price of good X. मतलब करना क्या है मुझे पहले ये बताओ. मतलब देयर इज केस क्या है कि देयर इज अ प्राइस फॉल ऑफ गुड एक्स. तो हमें ये समझाना है कि प्राइस फॉल की वजह से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या आ रहा है, इनकम इफेक्ट क्या हो रहा है और नेट इम्पैक्ट डिमांड पे क्या आ रहा है गिवन गुड एक्स इज इंफीरियर इन गिवन एंड नॉर्मल. तो सबसे पहले हम इंफीरियर गुड को केस को कंसिडर करते हैं. प्राइस हैज फॉलन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस ऑफ गुड एक्स हैज फॉलन. मुझे बताओ सब्सटीट्यूशन इम्पैक्ट क्या कहेगा. इसका प्राइस फॉल हुआ है, व्हाट विल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लीड टू. Will it lead to increase in demand of good X or decrease in demand or no change? Why increase? इसका प्राइस फॉल हुआ है तो people will shift consumption from other good to this good. तो as a result of substitution, can I say demand for good X will increase? कोई doubt? What will be the income effect? Given that it's an inferior good, is there any change in income? तो क्या फिर नो इम्पैक्ट आना चाहिए. परचेजिंग पावर में चेंज आया. जब भी डिमांड चेंज हो रही है तो परचेजिंग पावर में तो चेंज आया ही आया. तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है. परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है. परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, इंफीरियर गुड है, डिमांड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी. इंफीरियर गुड में क्या होगा, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी उल्टी चलती है. इट्स एन इंफीरियर गुड, तो डिमांड डिक्रीज. नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स हैज फॉलन. तो नेट इम्पैक्ट क्यूडी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए गिवन दैट इट्स एन इंफीरियर गुड. इतना टाइम पेपर में ना तो आपको कोई समझाएगा और ना ही आपके पास है, ना ही इतना ये मुश्किल क्वेश्चन है जितना आप लोगों ने इसको बना दिया है. इंफीरियर गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है या नहीं होता. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चलो ये डिस्कस करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी. ये सिंपल रूल ऑफ डिमांड है. ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स, अब लॉ ऑफ डिमांड आता किस वजह से है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग दूसरे गुड्स पे चले जाते हैं और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही डिक्रीज करते हैं डिमांड को और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है. ये किस केस में है, नॉर्मल गुड के केस में. अगर ये गुड इंफीरियर है तो क्या तब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है या नहीं होता. इंफीरियर गुड में और नॉर्मल गुड में एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम. सो इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड में क्या होएगा कि अगर प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं करेगी. क्यों, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हम क्या कहेंगे, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है. लेकिन इंफीरियर गुड की डिमांड तो बढ़नी चाहिए इवन दो इनकम हैज इंक्रीज. इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनकम इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस.
income decreases, quantity increases. तो inferior good में income effect एक तरीके से आपकी डिमांड को बढ़ाएगा, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड रूल अप्लाई होगा ही होगा. लॉ ऑफ डिमांड अगर अप्लाई होगा इसका मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा इसके इम्पैक्ट से, जिसकी वजह से नेट में प्राइस इंक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी फॉल ही करेगी. इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होएगा कि वो क्वांटिटी को इंक्रीज करवा दे. अब हम आते हैं गिफन गुड में. गिफन गुड इज अ कॉम्प्लेक्स केस ऑफ इंफीरियर गुड where law of demand does not apply. तो लॉ ऑफ डिमांड अगर प्रिवेल नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस इंक्रीज तो हुआ लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहेगा प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड डिक्रीज करो. इनकम इफेक्ट क्या कहेगा, प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड इंक्रीज करो. तो मेरा लॉ ऑफ डिमांड गिफन गुड में अप्लाई नहीं होगा. क्लियर है. तो अब यहाँ पर नेट इम्पैक्ट क्या आना चाहिए, इंफीरियर गुड में क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए कि इंक्रीज होनी चाहिए. अगर मेरा प्राइस फॉल हुआ है तो प्राइस क्वांटिटी हैज टू इंक्रीज, बिकॉज इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्टिल ग्रेटर देन योर इनकम इफेक्ट. ये 90% जब आपका CB2 भी निकल जाता है ना, आप हायर इकोनॉमिक्स भी कर लेते हो, 90% लोगों को ये चीज़ फिर भी क्लियर नहीं होती. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डज इंफीरियर गुड, गिफन गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स ऑपरेट. So online students, I hope I am clear to everyone. Any doubts in this application question, please ask upfront. This substitution effect और income effect पे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट है. अब देखो नॉर्मल गुड का केस. X का प्राइस फॉल हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहेगा नॉर्मल गुड में, डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी. प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ेगी. इनकम इफेक्ट क्या कहेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, कम क्यों होगी, नॉर्मल गुड है. तो नेट इम्पैक्ट इंक्रीज. सिंपल लॉ ऑफ डिमांड. दोनों सब्स्टिट्यूशन और इनकम इम्पैक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो ये आपका MCQ में आ सकता है कि इन इंफीरियर गुड सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट एंड इनकम इफेक्ट आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट स्टिल इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन इम्पैक्ट ऑफ इनकम. एंड इनकम नॉर्मल गुड में दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. अब आते हैं हम गिफन गुड. प्राइस ऑफ X फॉल, सो सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट सिंपल है कि डिमांड हमारी इंक्रीज करेगी. इनकम इफेक्ट क्या कहेगा, परचेजिंग पावर हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड कम होएगी. और क्योंकि ये गिफन गुड है तो इनकम इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, leading to price being fall, quantity being falling. तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता. एक्सेप्शनल केस वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, कि किसी चीज़ का प्राइस फॉल हो रहा है फिर भी हम उसकी क्वांटिटी कम करी जा रहे हैं, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है फिर भी हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा रहे हैं. State whether the following goods are substitutes or complements and also state the sign of cross price elasticity. Petrol and cars, complement or substitute? Complement. What will be the sign of their elasticity? Negative. Because why negative? अगर मेरे पेट्रोल का प्राइस पड़ेगा तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम होगी और दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली कार्स की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी. बसेस एंड कार्स सब्स्टिट्यूट्स. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव. ठीक है. सो मेरे को अभी और क्वेश्चंस तो डिस्कस करने हैं बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो
We will be continuing with same chapters discussion, बस इसमें मैं एक आपका डिमांड सप्लाई का जो सेकेंड चैप्टर है दैट टॉक्स अबाउट इलास्टिसिटी मैं वो ऐड कर रही हूँ. So basically your target is now 1, 3 and 4 as per 2019 syllabus, 1, 2 and 3 as per 2024 book. So whatever book that you are referring, you can refer. So online students, I hope the doubts are cleared. Anything which you are not able to understand, feel free to put it in the chat section. Otherwise, we are good to go. So everyone, do complete your targets. कुछ भी doubt लगता है, do ask the team for the same, but don't keep it on you. It's important that you're completing the videos on time, but don't give me this reason that I'm not able to complete because of this reason. If you are not able to complete, just ask help from the team in case of any confusion. So with this, we wrap up for the day. Thank you.